टाइम में भी होता है, जिससे पहले इशू होती थी पेमेंट की ना सुबह होती है, आज सुबह हुई है, आज सुबह والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، الہی آفس میں اپنے کلائنٹ کے لیے کوئی اچھا کام کریں، آپ اسے فیس دے رہے ہیں، آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اجر مانگنے کی توفیق رکھنی چاہیے. اور اسی طرح میں اب سب یہاں پہ چہرے کی مسکراہٹیں دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا اور خوبصورت شعر ایک آیا، میں خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست پھیلانا پڑتا ہے. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوتا. تو میں جناب آپ سب یہاں پہ محترم میرے گیسٹ، میرے ممبر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کے اپنے حصے کے لیے تقریب کا ڈپٹی ڈائریکٹر SCCP کہ وہ اسٹیج میں تشریف لیں. اس کے بعد سعید اللہ CRO اسلام آباد صاحب، اس کے بعد مزمل شاہ صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر SCCP کو میں گزارش کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے بار کے ممبر، ہمارے پینلسٹ عبد العزیز کامران احمد صاحب کو میں گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لیں. وحید صاحب کو اسٹیج پہ اور میں گزارش کروں گا زعفران یوسف صاحب، ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب کو یہاں پہ موجود ہیں. جناب سب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ہال بھر گیا ہے. خوشی اس بات کی بھی ہے کہ شارٹ ٹائم میں ہمارا رسپانس اچھا ہوا. خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو مٹیریل میں آؤں. ہم یوزلی ایک سیشن کرتے ہیں، اس کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً 5 ساڑھے 5. ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، 6 بجے اسٹارٹ لیتے ہیں، 8 بجے کھانا ہو جاتا ہے اور یہ ایک ہمارا ایک سیشن ہو جاتا ہے. اس کی کاسٹ بھی وہی ہوتی ہے. مجھے لگا کہ یہ جو آنے جانے کا ٹائم ہے، اکٹھا ہونے کا، کھانے کا، میں 3 چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے. بار بار اکٹھا ہونے سے یہ بہتر ہے کہ میں ایک وقت میں بہت سا مٹیریل ان کو دوں. اور دوستوں نے اس بات کے اوپر کافی زیادہ پذیرائی کی اور ماشاءاللہ میں نمبر آف آڈینس دیکھ رہا ہوں تو بہت خوشی فیل کر رہا ہوں. آپ سب کو میری طرف سے ویلکم ہے. SCCP کی ٹیم کو میں ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایک بہت اچھا پروفائل رکھتے ہیں
اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مزمل شاہ صاحب ہیں اور ساتھ درمیان میں جو ان کو بہت زیادہ میری طرف سے ویلکم ہے، تمام آڈینس کو ویلکم ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ لرننگ، یہ خود بھی آنا چاہ رہے تھے، ایک اچھا سسٹم بنایا ہے، میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور آپ سب کو ویلکم، تھینک یو کہ وہ تشریف لائیں First of all, thank you to Mr. Faraz sir, President, Islamabad Rawat Cricket Export Association, Mr. Nawaz sir, Secretary Export Association, and all the period of Export Association, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Asif Muzaffar Sheikh. I am working as a joint registrar in SCCP for the last 16 years, and academically I am a fellow member of ICMA, and I have also done degree in corporate secretaries, and recently I also obtained diploma in Islamic finance profession. اس وقت جو آپ سب کو معلوم ہے کہ SCCP نے فرمی میں ایک بہت بڑا ایک مائلسٹون اچیو کیا ہے کہ ایک نئے اس میں بیسیکلی دو چیزیں تھیں سب سے امپورٹنٹ. فرسٹ ہم نے کمپنیز ریگولیشنس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، جس سے بھی ہمارے اسکیٹرڈ ریگولیشنس پڑے ہوئے تھے مختلف ایریاز میں، ان سب کو کمپائل کیا ہے، ریویو کیا ہے، اور اس کو اسٹینڈرڈائز کر کے ایک بک ایک پیج پہ ہم نے ان کو کمپائل کیا ہے. اور نمبر 2 ہم اپنے جو ایگزسٹنگ ای سروسز تھا جو کہ بالکل اپنی آخری اس کی جو ایشوز تھے کافی آبسولیٹ ہو چکا تھا اس کا انفراسٹرکچر، تو اس کو ہم نے شفٹ کیا ہے ایک آٹومیٹک پروگرام جس کا نام ہے ایزی فائل. اس کے بارے میں جو اس وقت ہم ڈسکس کریں گے، ان دو چیزوں کو ایریا کو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے ایزی فائل میں اس کے جو پروسیسز ہیں ان کو بریفلی اس کا ریکیپ کیا جائے گا، اور جو اس کے جو امپورٹنٹ سیلنگ فیچرز ہیں اس کو میں آپ کو بریف کروں گا. اور دوسرے پارٹ میں کمپنی ریگولیشن میں جو میجر چینجز ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیا جائے گا. فارم 29 اسٹک ہو جاتا تھا ڈیو ٹو سم ریزنس، ڈیو ٹو سم آبزرویشنس. یو کین ناٹ فائنڈ اندر فارم 29 اور وہ ڈیلے ہو رہا ہے، پہلے آپ کو کلیئر کروا رہے ہیں. یہاں پہ ہم ملٹیپل سبمیشنس کر سکتے ہیں. یوزر سینٹرک ڈیزائن ہے، ہر چیز آپ کی ٹیکسٹ پہ ہے، آپ کوشچنس کے آنسر دیتے جائیں، چیزوں کو لیتے جائیں، نیویگیٹ کرتے جائیں گے. آپ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، آٹومیٹکلی آپ کی انفارمیشن اس ڈاکومنٹ جو آپ کا جو فارم ہے اس کو میپ ہو جائے گی. اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہے، آپ نے جو پروسیس انیشیٹ کیا ہے اپنے سسٹم سے اس کی آؤٹ پٹ بھی اکنالجمنٹ سرٹیفکیٹس اس پہ آپ کو پریکٹس اور ساری چیزیں آپ کو یا ایون سرٹیفائڈ کاپیز آپ کو ڈیجیٹلی آپ کو اویلیبل ہوگی آپ کے ای میل ایڈریس پہ. تو نوٹیفیکیشن آنے شروع ہو جائیں گے. آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیا ہے، یو ول گیٹ اے نوٹیفیکیشن آن یور موبائل کہ ڈاکومنٹ آپ کا سبمٹ ہو گیا ہے. آپ کی پیمنٹ ویریفائی ہوئی، یو ول گیٹ اے نوٹیفیکیشن کہ پیمنٹ ویریفائی ہو گئی ہے. آفس سے ڈاکومنٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے، آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا ڈاکومنٹ آپ کا ایکسیپٹ ہو گیا ہے. جو آپ نے آبزرویشن لگی ہے آپ کو موبائل پہ ای میل پہ آپ کو نوٹیفیکیشن آئیں گے تاکہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ انٹیکٹ رہیں گے کہ آپ کا ڈاکومنٹ کہاں ٹریول کر رہے ہیں. ٹرن اراؤنڈ ٹائم اس سے آپ کا بڑا ریڈیوس ہو گیا ہے. مانیٹرنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے افیکٹو. ڈیش بورڈس بن گئے ہیں، آپ کا بھی ڈیش بورڈ ہے، یوزر کا ایک ڈیش بورڈ ہمارا آفیسر کا بھی ہے. یوزر کا ڈیش بورڈ کیا ہے وہ میں آپ کو سلائڈ کو دکھاؤں گا. اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کتنی کمپنیز میں کتنی اپلیکیشن انیشیٹ کی ہے اور کتنی اپلیکیشن کس کس اسٹیج پہ آپ کی پڑی ہوئی ہے. کتنی اپلیکیشن آپ کی اپروو ہو گئی ہے، کتنی آبزرویشنس میں ہے، کتنی پیمنٹ پینڈنگ ہے، یہ ساری انفارمیشن آپ کے ڈیش بورڈ پہ اویلیبل ہوگی. تو یہ مختلف آپ کی جو اپروول ہے آٹومیٹڈ آپ کی اپروولس ہو گئی ہیں ساری. Now we come to the next point, what is the LEAP journey? The LEAP journey is the broader concept of SCCP digitization process. The second phase is phase 1B. It has also been launched on 12th February 2024. It mainly relates to the incorporation process of the company and the post-incorporation, some major processes of the post-incorporation of the companies. The third phase is phase 2A, which includes آپ کے یہ جو فیز ہے بیسیکلی کمپنی سے ریلیٹڈ، اس کو اسپلٹ کیا ہے 2 فیز میں. فرسٹ فیز 1B ہے اور اس کے کچھ پروسیسز ہم نے 2A میں لکھے گئے ہیں، جیسے مورگیج چارجز ہیں، فورن کمپنیز ہیں، وائنڈنگ اپ ہے، مرجرز ہے، ریگولیٹری اپروولس ہیں. These are in the process. These have not been yet launched.
ابھی پروسیس میں ہیں اور اوور دا پیریڈ آف 3 to 4 months یہ بھی اس ایزی فائل کے اندر اس کو بھی ہم آٹومیٹ کر دیں گے. اینڈ لاسٹ پروجیکٹ از ایڈجوڈیکیشن ڈپارٹمنٹ. ایڈجوڈیکیشن آل دا شوکاس نوٹسز, ڈیمانڈ نوٹسز ول بی آٹومیٹ. سپرویژن, لٹیگیشن اینڈ ادر انفورسمنٹ پروسیسز, سارے پروسیسز جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو جائیں گے ہمارے. بیسکلی دیز آر دا 4 phases of the LEAP project. Now phase 1 is LLP registry, as already been said. It relates to LLP. Next is phase 1B, company incorporation. इसमें annual filing, form 9, आपकी election selection of directors, allotment of share, transfer of shares, जो major processes हैं वो सारे आपके इसमें covered हैं. phase 2A में हमारे mortgage charges हैं, foreign companies हैं, company exit scheme, आपकी company easy exit, winding up, merger, convergence, all these processes are covered in phase. New interface introduced by SCP for filing of documents by the regulators, replacing the old e-service project. It has many features like auto alerts, notifications, announcements, and submission of documents seamlessly through system. Distinguished features of easy file इसमें distinguished features में सबसे पहले एक has to be decide tool ऐड किया गया. आपके शेयर लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड होंगे, मुख्य 5-6 परसेंट के बाद आपको वो गाइड करेगा कि आपको कौन सी बेस्ट सूटेबल कंपनी है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक. इसी तरह इजी फाइल में गाइडिंग मटेरियल अवेलेबल होगा. बिल्डिंग चेक्स हैं, कोशिश की है कि जितने प्रोसेसेस हैं उसके हर फील्ड पे चेक लगे कि मिनिमम एरर के साथ डॉक्यूमेंट आपका रजिस्ट्रार के पास जाए ताकि उसकी प्रोसेसिंग आपकी जल्दी हो सके. कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिसाइड मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन भी है. हर प्रोसेस पे जितने भी उसका रिजल्ट आ रहा है वो आपको स्टेप बाई स्टेप आपको ईमेल और SMS के थ्रू वो आपको कम्युनिकेट हो रही है. टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहे, आपके प्रोसेस जो आपने इनिशिएट किए और उसकी जो डिस्पोजल हो रही है रजिस्ट्रार के एंड से वो आपको इंस्टेंटली आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती जाए. यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो, यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन हो, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी मेजर्स आपको उससे ज़्यादा हों ताकि आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहे. सिस्टम के थ्रू मिल रही है. एप्लीकेंट को हर स्टेप की इंफॉर्मेशन मिल रही है. ऑटो अलर्ट कम्युनिकेशन है और कौन सी फाइलिंग आपकी ड्यू है वो आपको वेरी टाइम आपके पास अलर्ट्स आएंगे कि आपके इलेक्शन ड्यू हो गए हैं, आपकी एनुअल फाइलिंग ड्यू हो गई है. इस तरह के इशू. गाइडिंग मटेरियल है. गाइड पे आपके अगर आपने जिन लोगों ने यूज़ किया है गाइड पे मुख्तलिफ चीज़ों के उसमें स्टेप बताए गए कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है. डैशबोर्ड रिपोर्ट जनरेशन इसके अंदर है. 360 व्यू आप जैसे आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमने इसमें ऐड किया है कि प्रीवियसली जब आप डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते थे तो आपको फॉर्म 28 सबमिट करना पड़ता था विच हैज़ टू बी साइंड बाय द इनकमिंग डायरेक्टर. और उसमें हमें बड़े इश्यूज आते थे कि बाद डिस्प्यूट जब राइज होता था तो वो कहते थे हमने तो साइन ही नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट जो है फेक सिग्नेचर के साथ आते हैं. अब इसमें हमने डिजिटल कंसेंट लेनी शुरू कर दिया है. इलेक्शन पे जो डायरेक्टर भी आएगा वो डिजिटली साइन करेगा डॉक्यूमेंट को ताकि वो जो एरिया है वो डिस्प्यूट का वो हमने जो ही क्लोज कर दिया. Next. Now we come to the process side. सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपने इस इजी फाइल को अगर यूज़ करना है तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपने इसके अंदर रजिस्टर होना है. और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज एज इजी एज साइनिंग इन. और आपने वेरिफिकेशन या फिर करने की जरूरत है तो आप पर्सनल सिटीजन को क्लिक करके वो चीज़ करेंगे. यहाँ पे आपसे वो TNIC या लाइकॉप आपसे पूछेगा. आप TNIC होल्डर हैं तो आपको क्लिक करें. TNIC के सिचुएशन में आपसे वो थोड़ी सी आपके ID कार्ड की इंफॉर्मेशन देगा. ऑटो राइट में सब सेक्टर आपसे पूछेगा जैसे ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज और सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा. इसको आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन देनी है. इसमें कंपनी का फिगर कैपिटल कितना होगा, साइज कैपिटल को ऐड करेंगे. फिर आगे वो पूछेगा कि आपको सर्टिफाइड कॉपीज आपको चाहिए. देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की ताकि टू एंड बैक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. उसके लिए सबसे पहले आपसे जो आप लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे आए. डैशबोर्ड पे आपके ऊपर जो टैब है माई कंपनीज को आप क्लिक करेंगे.
آپ کے یوزر کے ساتھ آپ کے کریڈینشل کے ساتھ جتنی کمپنی کا ٹیگ ہے ان کی بس ساری اوپن ہو جائیں گی. جس ریلیونٹ کمپنی کی آپ نے فائلنگ کرنی ہے اس کے نیچے ویو ڈیٹیل کے بٹن کو آپ کلک کریں گے, آپ کو کمپنی کا ڈیش بورڈ نظر آ جائے گا. What are the selling features of proposed company regulations? Number 1, جتنی ڈیفینیشنس تھی تمام ریگولیشنس کی اس کو ریویو کیا, اس کو امپروو کیا اور اس کو ایک علیحدہ چیپٹر میں ایک ہی جگہ پر پیش کر دیا کہ تمام ڈیفینیشنس آپ کو ایک ہی جگہ سے PDF کو ریڈی ریفرنس کے طور پر آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ تمام ریگولیشن جو 10 ریگولیشن تھے اس کے ٹوٹل 75 فارمس بنتے تھے. کمیٹی نے بڑی محنت کے ساتھ یہ تمام فارمس کو ریویو کیا. جتنے ریڈنڈنٹ فارمس تھے جو فائلنگ جس کی کبھی ہوتی نہیں تھی یا کورٹ آرڈرس کو آفس سے سبمٹ کرنے تھے یا کوئی اتنے یوزفل نہیں تھے, ان ریڈنڈنٹ فارمس کو ریویو کر کے اس کو ابالش کیا اور مختلف فارمس کو کلب کیا جو ایک ہی چیپٹر کے, جیسے آپ کا چارج ڈاکومنٹ کے آپ کو فارم 10 آتا تھا, رجسٹریشن کے لیے علیحدہ فارم تھا, اس میں تھوڑی سی انفارمیشن ایک دو ڈالتے تھے تو آپ باڈی کے لیے علیحدہ فارم بن جاتا تھا, ایک ڈیٹ آف سیٹسفیکشن ڈالتے تھے تو آپ کو فارم 17. یہ 3 فارم کو اکٹھا ہم نے کمبائن کر کے ایک سنگل کمپریہنسو فارم بنا دیا. اسی طرح فارم 13 اور 14 تھا اس کو میں علیحدہ کلب کر دیا. فارم 29 کا نام چینج کر کے ہم نے فارم 9 کر دیا. یہ کافی سارے فارم جو ریڈنڈنٹ ہیں ان کو ختم کر کے کلب کر کے ابھی ٹوٹل آپ کے 28 فارمز رہ گئے ہیں. اور اس میں تو سب سے جو امپورٹنٹ اس میں ہماری چیز تھی کہ کوئی آئٹم کوئی کمپلائنس ہماری پر مس نہ ہو, تو الحمدللہ بڑی اچھی کمیٹی نے کر کے 28 فارم پہ اس کو ریسٹرکٹ کیا. اس سے کم اور سب ڈویژن والا اور انکریز مسائل کیپٹل والا ان دونوں کو کلب کر دیا. اسی طرح فارم آپ کا 15 اور 29 تھے, سنگل ممبر کمپنی کا نامنی ایڈ کرنا ہے تو اس کو ہم نے فارم 29 کے اندر ایڈ کر دیا. فارم 31 32 علیحدہ فارم سے گلوبل رجسٹر ہوئے, ان دونوں کو ہم نے کلب کر دیا. وہ ایک ہی فارم بن گیا. انفارمیشن ادھر بھی سیم تھی اور ایک ریلیجن کی تھی, ادھر کمپنی کی تھی, وہ ایک ہی فارم کے اندر اس کو ہم نے کلب کر کے اس کو کر دیا. اس طرح جو مختلف اپلیکیشن تھی 30 اس کو ہم نے 6 پہ لے آئے. جو ریلیٹڈ اپلیکیشن تھی اس کو ہم نے وارش کر دیا. جو یو ریلیٹڈ فارمس تھے آپ کے 39 40 41 42 43 44 45 ان کے نمبر چینج کر دیے, 14 سے 19 ہو گئے اور اس پہ لیکن اس کے جو پرٹیکولر ہیں ان کو ہم نے چینج نہیں کیا. یہ میجر ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ جو کمپنیز ریگولیشن کی جو امپلیمنٹیشن ہے ان اسٹیج مینر, کیونکہ ہمارے جو ایزی فائل ہے اس کا جو فیز 1 بھی آیا ہے جو کہ لانچ ہوا ہے فروری میں, اس میں تمام پروسیسز نہیں ہیں. اس میں جو 70% پروسیسز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہے, 30% نیکسٹ فیز میں ہے. آپ کو ٹائم پیریڈ دے دیا ہے کہ 3 منتھ کے اندر آپ کر دیں, کیونکہ ابھی ایکٹ میں اسپیسیفائڈ پیریڈ تھا, ابھی ٹائم نوٹیفائی ہوا تھا, ٹائم نوٹیفائی کیا گیا. پٹیشن فار آلٹریشن میمورینڈم کا بڑا ایشو تھا کہ پہلے لاء میں ٹائم تھا کہ 60 ڈیز کے اندر اسپیشلائزیشن پاس کرنے کے 60 ڈیز کے اندر پٹیشن ہیز ٹو بی فائلڈ ود دا رجسٹرار. نارملی کیا ہوتا تھا کہ آپ نے کریڈٹر سے NOC دینے ہوتے تھے, وہ کریڈٹر سے NOC نہیں آتے تھے, وہ پیریڈ لیپس ہو جاتا تھا, تو وہ ایشو بن جاتا تھا کہ آپ جمع کر دیں. تو ٹائم کو اس کو ہم نے اسٹریچ کر دیا 90 ڈیز کے لیے. ایک اور پروویژن دی کہ آپ کو سیکشن 32 کے مطابق اس میں کچھ کلاسز دیتی ہیں کہ آپ میمورینڈم میں چینج کرنے کے لیے آپ رجسٹر آف ایڈریس چینج کر سکتے ہیں یا دوسرے نام آف بزنس چینج کر سکتے ہیں, یا اگر آپ نے کوئی ایسا بزنس لائسنس کرنا ہے تو آپ اس کی پٹیشن کے تھرو فائل کر سکتے تھے. لیکن اب ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ بہت سارے جو پرانے میمورینڈم سے تھے وہ سنگل آبجیکٹ پہ جانا چاہ رہے تھے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. ایک ہم نے پروویژن ریگولیشن میں ڈال دی ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنگ میمورینڈم جس میں 40-50 کلومیٹر ہوتی ہیں وہ سنگل آبجیکٹ میمورینڈم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کنورژن آف اسٹیٹس کا پیریڈ 60 ڈیز سے بڑھا کے 90 ڈیز کر دی ہے. اس کے علاوہ جو فارم 3A پہلے تھا ٹرانسفر آف شیئر فار مور دین 25%, اس میں کلیئر نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ڈاکومنٹ دینا ہے. کوئی ریگولیشن کوئی بورڈ ریگولیشن دے دیتا تھا, کوئی منٹس دے دیتا تھا, تو آپ انہیں کلیریفائی کر دیا کہ وہاں پہ جو بندہ فارم 3A سائن کر رہا ہے وہ اپنا ایفیڈیوٹ دے گا فار دا کریکٹنس آف دا پرٹیکولر کنٹینٹ دیئرن. کلیریفائی کر دی ہے. پریویسلی پہلے ہم نے سرکولر ختم ہو گیا تھا کمپنیز ایکٹ میں سے, بعد میں امینڈمنٹ کے تھرو سرکولر پھر آ گیا.
लेकिन इन दिस पीरियड आपके पास सर्कुलर कोई प्रिस्क्राइब नहीं था कि जो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भेजना है, तो उसके लिए फॉर्म 12 और अनलिस्टेड कंपनी हमने प्रिस्क्राइब कर दी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी रिसेंटली प्रेजेंटली जो आपके फर्दर इशू ऑफ कैपिटल रेगुलेशन 2020 के जो इन प्लेस हैं, वो तमाम कंपनीज के लिए थे, लिस्टेड के लिए भी थे, अनलिस्टेड के लिए भी थे, प्राइवेट के लिए भी थे, और इतनी वो एक्सटेंसिव उसके अंदर रेगुलेशन थी कि एक आम प्राइवेट वाला उससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो चेक करेगा उसमें कौन सी एप्लीकेबल है, कौन सी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी के लिए कमीशन ने अलग रेगुलेशन कर दिए हैं। जो 2020 वाले आपके जो रेगुलेशन हैं अनलिस्टेड के, वो एप्लीकेबल होंगे ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज, और जो कंपनीज रेगुलेशन में रेगुलेशन भी हमने प्रोवाइड किए हैं, दीज आर एप्लीकेबल ऑन द अनलिस्टेड कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। लास्ट ईयर हमने बायबैक ऑफ शेयर अनाउंस किए थे, दो रेगुलेशन हैज आल्सो बीन बिकम पार्ट ऑफ दिस रेगुलेशन। इसी तरह चेंज ऑफ नेम के लिए फॉर्म 8 एक प्रोवाइड किया था, वो फॉर्म जो था उसमें उसकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक रिडंडेंट फॉर्म था, हमने उसको ख़त्म कर दिया है। ऑनलाइन जब आप जाएंगे इंटरफेस पे सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक फॉर्म डेवलप कर देगा। तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म इसका हमने ख़त्म कर दिया। का नेम चेंज ऑफ नेम के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, खासतौर पर लिस्टेड कंपनी क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा चार्ज रजिस्टर होते थे, उनके सिक्योर क्रेडिटर बहुत ज़्यादा होते थे, और वो एनओसी सारों से लेना मुश्किल होता था, उसका चेंज ऑफ नेम रुक जाता था। और ये जो एनओसी आपने लेना था, ये 2018 के रेगुलेशन से पहले रिक्वायरमेंट की थी। तो पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से अप्रूवल लेते थे, एक नाम रजिस्टर करवा लेते थे, और फिर हमारे पास मेन रेजर्वेशन के लिए आते थे, और वो नाम ऑलरेडी मैच कर रहा होता था, तो उनको फिर दोबारा वीओ करना था, वो एक लंबा प्रोसेस वो अटैम्प्ट करते थे, उसको दोबारा नाम रिजर्व करते हमारे पास आ गए। अब हमने उसकी स्कीम ही डिफरेंट कर दी है कि जिसने भी वो फॉरेन कंपनी के लिए जाना है, सबसे पहले वो ऐसी स्कीम से नाम रिजर्व कराएगा, देन वो कॉन्टैक्ट करेगा वीओ के पास, ताकि नेम रिजर्वेशन का इशू खत्म किया जा सके। फॉरेन कंपनी रेगुलेशंस में एक चीज़ थी कि आपको फॉर्म 5 जमा कराना पड़ता था ऑफिस, वो आपने उसके साथ अटैच करके आपने जमा करा देना है, जैसे बाकी कंपनी के अकाउंट सबमिट करते हैं। इसी तरह क्लोजर के लिए इसमें विड्रॉ था कि आप जब फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे तो आप वीओआई से अप्रूवल लेके आते थे, लेकिन जब क्लोजर की तरफ जाते थे तो वीओआई को पता ही नहीं होता था कि कंपनी क्लोज हो गई है, तो वहाँ भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट करती है, जब आप क्लोज करने जाएंगे तो आप वीओआई से आप एनओसी लेके आएंगे। कुछ फॉर्म नॉट शेयर कैपिटल और फॉर्म डी होता था आपके पास फॉर इनएक्टिव कंपनी। इन 3 फॉर्म्स को हमने क्लब करके एक कंप्रिहेंसिव सुपर फॉर्म बना दी, एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी, ये तीनों इसमें क्लब हो गए हैं। सिमिलरली अलॉटमेंट का शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का फॉर्म 3 था और ट्रांसफर ऑफ शेयर का फॉर्म 3A था, इसको क्लब करके हमने फॉर्म 3 कर दिया है। फॉर्म 29 जो प्रीवियसली था और फॉर्म 15 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी ऑफ एसएमसी, इसको हमने क्लब करके इसका नाम फॉर्म 9 कर दिया। फॉर्म 7 इंक्रीज का प्राइस कैपिटल का था, इनको क्लब करके सेम फॉर्म कर दिया हमने। फॉर्म 10 जैसे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर्गेज चार्ज, मॉडिफिकेशन और कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और फैक्टर मोर्गेज सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, ये चारों एक ही नेचर के थे, चारों को इकट्ठा करके एक कंप्रिहेंसिव फॉर्म हमने बना दिया। फॉर्म 31, 32 जो ग्लोबल रजिस्टर का था, इसको भी हमने क्लब करके सेम एक फॉर्म कर दिया। ये यूबीओ के फॉर्म थे, जो आपका फॉर्म 45 था, इसका नाम चेंज, ये तमाम स्पेसिफिकेशन के लिए इसमें अगर आप देखें तो पहले कॉलम में एग्जिस्टिंग फॉर्म है, थर्ड कॉलम में अगर देखें तो हमने बताया कि इस फॉर्म का कंपैरेटिव नए रेगुलेशन में कौन सा फॉर्म है, उसके रिमार्क्स लीजिए, कंप्लेंट को एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट कंबाइन कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है, वो सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, और आगे बता दिया कि ये किस मोड में आपके पास सबमिट होगा। जैसे फॉर्म ए है, ये फेज 1B का पार्ट था, इसके अंदर प्रीवियसली फॉर्म ए, बी और डी क्लब हो गए हैं, और ये ई फाइल में आपके फाइल होगा, ई सर्विसेज में फाइल नहीं होगा। इस तरह फॉर्म सी था नो चेंज वाला, अगर प्रीवियस रिटर्न एनुअल रिटर्न से लेकर आज तक अगर आपके पर्टिकुलर में चेंज नहीं है तो आप फॉर्म सी सबमिट करते थे, उसका नाम चेंज करके फॉर्म 24 कर दिया, वो भी ई फाइल में आएगा। इस तरह ये कुछ फॉर्म 2A जो थे अबॉलिश हो गए हैं। फॉर्म 3 है, ये भी ई फाइल में आएगा। फॉर्म 4 है,
ये नया फॉर्म आ गया, लेकिन इसकी फाइलिंग इसी फाइल के लिए 2A में का प्रोसेस है नेक्स्ट फेज का। इसकी फाइलिंग हमेशा जब तक नया फेज नहीं आता आपने मैनुअल फाइलिंग करनी है। जो आपके रजिस्ट्रेशन मॉर्गेज चार्जेस हैं और फॉरेन कंपनी है और तीसरी चीज़ आपके लीव के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अभी भी ई सर्विसेज में ही डील हो रहे हैं। आप लीव के लैंडिंग पेज पे जाएंगे, उसके ऊपर एक आइकॉन बना हुआ है स्विच टू ई सर्विसेज, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप ई सर्विस के पेज पे लैंड कर देंगे और जैसे आपके पीडीएफ पैकेज के मुताबिक अपने फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा कंपैरिजन आपके पास अवेलेबल है, इसमें एक एक फॉर्म के हवाले से हमने लीव कर तो जिस तरह फाइनल करते हुए आईटी के थ्रू आपके प्रोसेस सब सबमिट कर रहे हैं, प्रोसेस सबमिट नहीं हो रहा, कि अगर फीस डिपॉजिट करते हैं तो बैंकिंग चैनल जो भी क्वेश्चन मुनासिब करना चाहेंगे आपसे थोड़ा करना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई है थ्रू ई है या जी है, मैं याद नहीं हूँ। मेरा स्टाफ करता है ये काम, मैं खुद तो नहीं करता, लेकिन मुझे कुछ बताया गया था, उसकी बेसिस पे मैं आपको कुछ बात करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि आपकी वीडियो में भी एक बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ कहा गया और मैंने फिजिकली देखा भी स्क्रीन के ऊपर कि मेमोरेंडम की क्लॉज को आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ हुआ ये है कि मैंने प्रैक्टिकली उस क्लॉज को चेंज किया, आपके ड्राफ्ट के मुकाबले में सबमिट किया और वो रिजेक्ट हो गया कि नहीं, वो जो हमने दिए थे वो नहीं प्रॉब्लम। तो ये फिजिकल प्रॉब्लम ये है, जबकि आपकी वीडियो भी कुछ और कह रही थी। और होना चाहिए लिमिटेड चेंजेस के लिए ऑथराइजेशन आपको की, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसा चेंज कर देते हैं कि एक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर एक और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी उसमें इंसर्ट कर देते हैं। मसलन लॉ की स्पिरिट यही है कि यू विल डिक्लेयर वन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एंड दैट विल बी द फर्स्ट क्लास ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम, सिर्फ एक ही प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से कोई चीज़ें डालिए और वो भी रिजेक्ट हो गया तो वो कर दो, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी जा सकते हैं, लिमिटेड आपको ऑथराइजेशन दी है और उसकी बैकग्राउंड सर यू नो बेटर देन मी कि इसकी बैकग्राउंड क्या था। इससे पहले कंपनी से पहले लॉन्ग मेमोरेंडम हुआ करते थे, हमने कहा एक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आप डिक्लेयर करें, सेकंड क्लास ये है कि व्हाटएवर लीगल बिजनेस आप लॉफुल बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये हमने आसानी के लिए कर दिया था, लेकिन बहुत से लोगों का ये डिमांड अब भी है कि नहीं हम एक ही प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, फर्स्ट क्लास में हम दो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डालना चाहते हैं, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा उसमें हुआ है। बाकी आपका केस अगर रिजेक्ट हो गया है तो हम नोट कर लेंगे। हाउ टू इम्प्रूव इट, आप एससीपी के दफ्तर में बैठ के उस लिस्ट को कभी भी मुकम्मल नहीं कर सकते व्हाट इज ऑन ग्राउंड। तो बेहतर ये नहीं है कि वहां पे आप कोई एक ओपन ऑप्शन का बटन रखें जिसमें कुछ लोग अपनी चीज डालें और उनको कहें कि वेट एंड देन यू रिव्यू दैट पॉइंट एंड इफ थॉट कि ये सही बात कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्लॉज बिजनेस, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ये होना चाहिए, तो व्हाई नॉट दैट शुड बी एडेड टू दैट। जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रूल्स 1985 हुआ करते थे, उसके अंदर ये सारे फॉर्म 1.1.9 ये सारा उसमें। उसके बाद कंपनीज एक्ट पे हमने एक रेगुलेशन लॉन्च कर दिए, कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन 2018। तो उसमें हमारी ये कोशिश थी कि जो पुराने फॉर्म है उसी का नाम हम रखें ताकि लोग फेमिलियर है सदियों से, मतलब 1913 एक्ट के तहत जो रेगुलेशन बन आगे, तो हमने 75 फॉर्म्स को रिड्यूस कर दिया 28 पे। अब आगे नंबर हमें नहीं मिल रहा, 29 तो है नहीं इसके अंदर में काम से, एक तो ये मसला है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये जो बात आप पॉइंट आउट कर रहे हो वो हमारे पर्टिकुलर हमारे पाकिस्तान में ये इशू है कि हम अब न इसमें आना चाहते हैं न समझना चाहते, वो अपने बिजनेस का नहीं करते। लेकिन मेरे लिए एज ए पाकिस्तान डायलेमा ये है कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेड फिगर नहीं है जिसके बेसिस पे मैं अपनी प्लानिंग कर सकूँ। अब टैक्स बार के क्या, मेरा ख्याल में टैक्स बार के 3 मैं समझ रहा हूँ क्या टैक्स होना चाहिए एज ए लेमैन मैं कहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग स्किलफुल पर्सन से, आप लोगों के पास एक्सपर्टीज है,
उन एक्सपर्टीज को आप कॉमन मैन के लिए यूज करते हैं, तो उसमें दो फायदे हैं, कॉमन मैन को भी फायदा होता है और जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज है उनको भी फायदा होता है, और आप दरमियान में अपना फीस भी ले लेता है। एक ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका है वो ये है कि आप ये कोशिश करते हैं कि किसी टैक्स पेयर के साथ ज्यादती ना हो, क्योंकि उसके साथ अक्सर आपने देखा होगा क्या है, वो ये है कि आप कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहते हैं, टैक्स नेट में लोगों को लाना चाहते हैं ताकि वो टैक्स नेट में आ जाए, और यही काम मैं भी करना चाहता हूँ। तो ये जो लोग बहाने करें कि फॉर्म 29 से हम कर रहे अपने, अब ये जो जहाँ हम बैठे हैं ये यही बताना चाहते हैं कि फॉर्म 29 इज नो लॉन्गर, फॉर्म 9 इज देयर। अब बैंक का जो ब्रिलियंट मैनेजर होता है वो अपने आप को उसके अकाउंट ओपनिंग के हवाले से जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो सब पे अपने आप को अपडेट करता है। लेकिन जहाँ एक बैंकर इज नॉट विलिंग टू ओपन द अकाउंट फॉर यू, तो वो बहाने भी करेगा, वो सारी चीजें। फिर भी हमारी कोशिश है कि हम सब लोगों को बता दें कि हमारे अब ये फॉर्म है और पुराने फॉर्म अब ऑब्सोलीट हो गया, और ये मैसेज हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए मुसलसल हम कोशिश करते हैं। तो आपने सही पॉइंट रेज किया, बट वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। 2-3 डायरेक्ट लाइन मेरे पास रखे हैं और मैं कोई भी फोन मिस नहीं करता। ये मैंने अपने साथ एक कमिटमेंट की है कि जो भी बात हो उसमें लोग सुनाते भी हैं, कुछ खुश भी होते हैं। चूंकि ये पब्लिक है, आपकी बिल्कुल बात सही है कि थोड़ी सी मतलब की है, लेकिन हम मुसलसल उस पर कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप हमने लॉन्च किया, एक्सेस हमने लॉन्च कर दिया। एक्सेस ये बड़ा अच्छा मालूम है, उसमें एक क्वेश्चन है, आप सारी चीजें फिल करें, ये जब लॉन्च होगा मुसलसल आपको वो इंट्रोडक्शन दिया। आप ब्रीफिंग दे रहे थे और आपने खुद महसूस किया कि शायद आपने डिजाइन किया हुआ था, तो आप एक लेडीज की आवाज सुना दे रहे हैं, उसके थ्रू वीडियो देते रहे तो शायद बोरियत किसी को नहीं, जितने भी लोग हाल में बैठे हैं। ये क्वालिटी है आपकी प्रेजेंटेशन की, मैं ये थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जितने भी आपने नए फार्म्स दिए उसमें डेवलपमेंट जो आपकी तरफ से हुई, आपने कुछ फार्म्स को जो पहले ज्यादा फार्म थे स्प्लिट हुए थे उनको कंबाइन कर दिया, एक जगह ले आए। तो जो लोग हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, हमने तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर लिया है। मेरी एक जो हम्बल रिक्वेस्ट है वो आपसे ये है कि सबसे ज़्यादा जो फार्म हमें ज़रूरत आता है, जो हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भेजते हैं, वो पहले फार्म 29 था, अब उसका नाम आपने फार्म 9 रख दिया है। लेकिन ये ज़्यादा यूज होता था पहले बैंक्स वगैरह में या उन अदारों में जहाँ लाइसेंसेस की रिन्यूअल होती थी, अभी वो इससे यूज नहीं है, उन्हें जाके हमें समझाना पड़ता है। वहाँ पे हमने मोबाइल नंबर नहीं देना। तो दूसरी बात ये एफडीआर में आमतौर पर ये रजिस्ट्रेशन में जब एक ईमेल को मोबाइल नंबर एक इसमें यूज हो जाता है तो वो दूसरे में यूज नहीं हो सकता। तो आपकी जो कोई है SECP की EZ फाइलिंग में वो एक मोबाइल नंबर और वो ईमेल एड्रेस हम 10 कंपनियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनीज टैग करते हैं। लेट्स सपोज मेरा एक यूज़र है, मैं 5 कंपनीज में डायरेक्टर हूँ, तो मेरे यूज़र में 5 कंपनियाँ टैग हो रही थी, तो मेरे उस यूज़र के साथ वही मोबाइल नंबर होगा और वही ईमेल होगा जो कि 5 कंपनियों में मेरे यूज़र के साथ है। एज ए डायरेक्टर में बात नहीं कर रहा, मैं एज ए कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ। जी, इंटरमीडिएटरी अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपका एक ही मोबाइल होगा और एक ही ईमेल एड्रेस होगा, उसी के थ्रू आप मुख्तलिफ कंपनीज की फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये लाहौर की होती है, लाहौर जाके करवाते थे, अब EZ में इसकी ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है। और मैं कराची की कंपनी अगर खोलना चाहूँ तो EZ पे ऑनलाइन जाके मैं खोल सकता हूँ या नहीं? पहले भी नहीं था, इस सर्विस नहीं हो पाता। बाकी जो आपका सवाल है कि जी मैं एज एन इंटरमीडिएट या कंसल्टेंट एक से ज़्यादा कंपनियों की फाइलिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें थोड़ा समय क्लैरिटी आपको दे। इंटरमीडिएट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये हमने दिया था मलेशिया से, एक कंसेप्ट दिया था मलेशिया में कंपनी सेक्रेटरी का कंसेप्ट। वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी इज ए लाइसेंस्ड बिजनेस, वो कमीशन से लाइसेंस लेता है, फिर जाकर मार्केट में अपना ऑफिस ओपन कर देता है और ही कैन सर्व एज ए कंपनी सेक्रेटरी फॉर मोर देन 50 कंपनीज। लेकिन कंडीशन उसमें यह है कि द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू द कमीशन विल बी साइंड बाय दैट कंपनी सेक्रेटरी। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लाए
आप मुझे बताएं जितने इंटरमीडिएरीज रजिस्टर है, किसी एक इंटरमीडिएरीज ने कभी कंपनी के डॉक्यूमेंट साइन किए? नहीं. ही इज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, ही इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मैं आपको बता दूं, ये कंसेप्ट था. अब अगर इंटरमीडिएरी के तौर पे आप साइन करना चाहते हैं, यू कैन साइन द डॉक्यूमेंट ऑफ मोर देन वन कंपनी अगर आप उनके साथ ट्रू पर्सपेक्टिव में एज एन इंटरमीडिएरी का रोल करते हैं. लेकिन यहाँ पे तो आप एज ए कंसल्टेंट आ रहे हैं, तो आप फाइलिंग करते हैं, लेकिन उस पर पेन अप्लाई करेंगे डायरेक्टर को शेयर होगा, वो आप अपना नहीं कर सकते. उसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं. ये वही है, ये जुगाड़ है. जुगाड़ देखिए जो उन्होंने अपना पिन कोड आपको दिया और आप करते रहे. असल में हमारा जो मेन पर्पज यही है कि नहीं वो बंदा खुद देखेगा. एक सवाल आपका ये भी है कि जी लोकल के लिए मैंने तो ईमेल और मोबाइल भी डाल दिया है और फॉरेन के लिए मैंने सिर्फ ईमेल डाल दिया. ये रिलैक्सेशन नहीं जी. तो ये रिलैक्सेशन में लोग कहेंगे कि इन्वेस्टर्स को लाने के लिए नहीं, ये मेरी लिमिटेशन है. जो मोबाइल नंबर वो मुझे देता है उसकी वेरिफिकेशन और उस पर पिन कोड जाना आना इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. ठीक है, और अक्सर नहीं जाता. ये भी एक मसला था. और लोग फॉरेन में जो बैठे वो चाहते कि मैं कंपनी बना लूँ, तो हमने कहा जस्ट ईमेल पे करें, लेकिन एंटर इन द यूजर आईडी एरिया जो हमने दिया है कि ठीक पहले तो यूजर आईडी बन जाए, हमारे सब्सक्राइबर बन जाए इजी फाइल पे, तो कंपनी बनाए या न बनाए. वंस ही कम्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो वहाँ फिर हम उनसे सारे करेंगे. तो दैट्स व्हाई हमें उसको थोड़ा सा ठीक है. इसने दूसरा कारोबार करने पे क्या वो अलग कंपनी बनाएगा? फिर अब अक्सर इस तरह होता है कि अगर आप सिंगल लाइन बनाते हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि नीचे लिखा होता है कि आप कोई फिजिकल कारोबार कर सकते हैं. आप जब आप बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं जो फर्स्ट करें मेरे क्लाइंट है वो जनरल ऑर्डर से तैयार का काम कर रहा है. वो जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आज तो मेमोरेंडम में तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं, तो उसका ये फिर किस तरह ठीक है. लेकिन उसमें यही था कि हम उनको सेकंड क्लास जो मेमोरेंडम का है वो रेफर करते हैं कि जी ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है क्या ये इलीगल है? वो कहेगा नहीं लीगल है. तो मैंने मेरे क्लास 2 में मेंशन है कि एवरी लॉफुल बिजनेस में कर सकता हूँ, ये उसमें आ गया. ठीक है, लेकिन अगर फिर भी उसको इशू है तो ही कैन एंटर अ सेकंड क्लास आल्सो. ठीक है. पहले तो था कि आप बैलेंस शीट अलग अटैच करेंगे, प्रॉफिट लॉस अलग अटैच करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलग, नोट्स टू द अकाउंट अलग. अब अगर आप चेक करें तो आप कंप्लीट सेटअप अकाउंट के अलग टैब लगाते हैं और हर प्रोसेस के साथ मिलती है स्टेटमेंट की भी टैब मिलती है. अगर आप डिटेल चेक करें तो सारी प्रोविजन आती है. बैंक में उनके पास अगर नहीं भी होता तो आगे ये भी कर देते हैं कि आपको इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और मिल भी जाता है. जबकि एससीसीबी में हमें ये बहुत बड़ा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है. तो मेरी रिक्वेस्ट है सर एससीसीबी के पास वो बंदा रजिस्टर्ड होगा, उसकी क्वालिफिकेशन भी एससीसीबी को इन्फॉर्म्ड होगी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी एससीसीबी के पास होगी. एससीसीबी तो मोर असाइड हो जाएगा अगर इस कंसेप्ट को आप इंट्रोड्यूस करा दें और अपने पोर्टल से जस्ट लाइक एफबीआर मिनी कमेटी का जो कंसेप्ट है उसके तहत उस पोर्टल के अपने क्लाइंट को लॉगिन करने हमें मेमोरेंडम की प्रिंसिपल लाइन ऑफ क्लॉज को चेंज करना पड़ता है और फिर हम मूव ऑन करना पड़ता है किसी भी लाइसेंस के लिए. जस्ट लाइक डीटीएस की एग्जाम्पल ले लें, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज में जाए या इवन पीएसडब्ल्यू में तो सिस्टम मूव ऑन हुआ है, एडवांस सिस्टम आ गया है, इसमें टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो गई है. तो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के मोस्टली इश्यूज रिजॉल्व हो गए. लेकिन अब आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ नहीं करना, माइक्रोसॉफ्ट एज को या आपका जो फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है इनको आपने यूज़ करना. और फायरफॉक्स रिकमेंडेड है कि सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटीज में ये पोर्टल शो कराता है. इसी तरह अगर आप फिर कोई इशू आ रहा है तो आप अपनी कैशे को रिमूव करें और मोस्टली आजकल से तरफ जाना चाहिए ताकि हम टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा बेनिफिट दे सकें. इसी तरह अभी फॉर्म 9 की बात हो रही थी कि फॉर्म 9 में फॉर्म 28 को ख़त्म कर दिया गया कि आपने कॉन्सेंट नहीं देना डायरेक्टर से सिग्नेचर करके वो फॉर्म अपलोड नहीं करना. ये बड़ा अच्छा काम किया एससीसीबी ने. लेकिन इसके साथ जब कोई डायरेक्टर रिजाइन करता है तो स्टिल ऑफिसर रिक्वायर्ड करता है कि आप रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करें. तो इस चीज़ को भी एक्सक्लूड करना चाहिए. तो ये ऑप्शन भी दी जाए कि अगर ये मिस्टेक हो जाए तो उसको ऑनलाइन
आपके सिग्नेचर से आते हैं। स्पिरिट ऑफ बिला ये है कि ऑथराइज रिपेयर ऑफिसर जब वो साइन करते हैं तो दैट इज डीम्ड टू बी करेक्ट। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब ऑब्जेक्ट है वो हमारे उसमें पाइपलाइन में है। ये जो सिस्टम ला रहे हैं, इस सिस्टम में जो 3 चीजें मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो हमारी पाइपलाइन में है। एक तो ये हमारे पाइपलाइन में है कि जो रिटर्न आप हमारे साथ सबमिट करते हैं और हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो लेटर स्टेज ये आपको भी विजिबल हो जाएंगे। आपका हर कंपनी अपने सारे रिटर्न की हिस्ट्री देख सकती है। ये अंडर कंसल्टेशन है। सेकंड, उसमें एक ये है कि आपके सबसे ज्यादा डिस्प्यूट जो होते हैं वो शेयर होल्डिंग और डायरेक्टरशिप का होते हैं। अभी इनकमिंग डायरेक्टर के लिए उसका कंसेंट चाहिए अंडर द लॉ। उसमें मिस्टर एक्स को रिटायर शो कर रहे हैं तो बिफोर सबमिशन मिस्टर एक्स को एक ईमेल और उसको चला जाएगा कि भाई आपको रिटायर कर रहे हैं, आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके लॉगिन हो जाए, वहां पे अपना कंसेंट दे दे कि आप रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर वो कंसेंट नहीं दे रहा तो दिस कंपनी विल नॉट बी एबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। ये हम लाना चाहते हैं। इस तरह शेयर होल्डर के लिए भी इनकमिंग शेयर होल्डर, आउटगोइंग शेयर होल्डर, ये पिन कोड भी होगा। एक एडवांस स्टेज जो यूके में आजकल है वो फेस रिकॉग्निशन। यूके में फेस रिकॉग्निशन इस तरह है कि आप का वहां का सिस्टम आपका तस्वीर ले। And Canadian as well, and I'm the chairman Asia Pacific region for the development. छोटी सी सिर्फ गुजारिश है, कैनेडियन पाकिस्तानी भी है, वो एज ए कैनेडियन कंपनी खोलना चाहता है। कैनेडियन पाकिस्तानी भी है और वो कैनेडियन बिकॉज he will get lot of funding and other facilities around that. Is it possible? Number one. दूसरी चीज, I know lot of companies those are coming in Pakistan because of me. वो कैनेडियन भी है, चाइनीज भी है, they are mixed. Can they jointly come and open a company in Pakistan? ये मेरी बहुत गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच प्लीज। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि SCCP की पॉलिसी में ये इट इज द पॉलिसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कि जब भी कोई फॉरेनर आता हो पाकिस्तान में कंपनी बनाने के लिए आइदर शेयर होल्डर और डायरेक्टर तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। और एक बैक में आपको बता दूं कि 2012 में या 2013 में 2011 में मिनिस्ट्री ने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया कि जी नॉट सिक्योरिटी क्लियर्ड आई क्विट फ्रॉम दैट कंपनी, ठीक है, एंड विल अपॉइंट सम अदर पर्सन इन माय प्लेस। अब तो वो डिक्लेरेशन हमने लेके कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, बंदे को एडमिट किया, रेफर सामने भेज दिया। साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है। लेकिन आजकल हमारे सिक्योरिटी क्लियरेंस के चीजें जल्दी हो रही है। आजकल 1 महीना 2 महीने हो गए, बड़ी तेजी से हो रही है, पहले नहीं हो रहा था। आप PDF की फॉर्म में अगर हम एक बैलेंस शीट एक बड़ी कंपनी की है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो PDF का साइज ज्यादा होने की वजह से अगर आप उसको माइनस करें, JPG में कन्वर्ट करते हैं तो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ PDF की है, ना कि वो JPG में कोई डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसको दोनों ही ऑप्शंस में दे दें तो ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो सकता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी। जो फॉर्म है उसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं मिसलेनियस फॉर्म के साथ, तो उसमें तो 50 पेजेस का है, तो उसकी फी कैसे डिटरमिन होगी? क्या 1000 ही होगी, उससे ज्यादा होगी या उससे कम भी हो सकती है? और अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके अलावा कोई एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हैं उसकी भी डिफाइन है, उसका नंबर ऑफ पेजेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो जो आपकी स्टैंडर्ड फाइलिंग फीस है वही उसका एप्लीकेबल होगी। अगर उसके अलावा आप कोई चीज मुझे देना चाहते हैं तो क्यों दे? जब मेरे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मुझे देना चाहते हैं तो क्यों दे? जी सर, वो समटाइम